सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, दैट इज ऑलरेडी आप इसमें पढ़ चुके हो. द सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज द circulatory system, has the three major components. What are the three major components of the circulatory system? Yes, it is blood, blood vessels and heart. Very nice. Heart acts as a pumping unit. It acts as a pumping unit. Pumping unit, that which has to pump the blood. ठीक है. ब्लड इज द फ्लूइड टिश्यू जो पूरी बॉडी में मूव करेगा, लेकिन कहाँ करेगा? दैट इज इन द ब्लड वेसल्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. 2 आपको करवाई हैं, थर्ड वाली मैं बताती हूँ. आर्टरीज एंड वेन्स. दीज आर, yes, these are the main arteries and the veins. These are the main blood vessels. And इन दोनों को भी कनेक्ट करने वाली तीसरी होती हैं, they are the capillaries. These are very fine branched structures called as capillaries. Arteries and veins are connected to the, with the help of capillaries, they are connected to each other. ठीक है. आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है? What type of blood it carries? Oxygen rich blood, or we oxygen rich blood, or we call it as oxygenated blood. ठीक है. So this carries the oxygenated blood. And do the veins also carry oxygenated blood? No. What type of blood it carries? Carbon dioxide rich, or we say deoxygenated. है ना, हम यही कहेंगे ना इसको, deoxygenated blood. तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड कभी मिक्स नहीं होते हमारी बॉडी में. ठीक है. आर्टरीज एंड वेन्स जो होती है ना, वो कैपिलरीज के साथ ज्वाइंट होती है. कैसे होती हैं? Let's say my this arm is acting as an artery, this arm is acting as a vein, and the fingers they make up a branches called as capillaries. आर्टरीज में से ब्लड आया, ठीक है, ये आर्टरी है, मेन आर्टरी, ये ब्रांच अप हो गई, आर्टरीओल्स बनाएंगी. और ये जो फिंगर्स है मेरी, ये क्या है? दीज आर कैपिलरीज. कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ठीक है. कोई भी ऑर्गन है, उसने क्या करना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज देना है. आर्टरीज ऑक्सीजन लेके आई, ऑक्सीजन ऑर्गन के पास, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज के पास, और कैपिलरीज ने वेन्स में से ब्लड लेके चले जाना. ठीक है. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से आर्टरीज एंड वेन्स का जो ब्लड है वो कभी मिक्स नहीं होता. ठीक है. इट नेवर मिक्सेस. एंड द रीजन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, विच यू विल बी डूइंग इट लेटर. ठीक है. अभी फिलहाल सुनो आगे. ब्लड वेसल्स 3 तरह के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड भी करवाए आपको. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? RBCs, WBCs, and these all are immersed in fourth component, blood plasma. That is the plasma, the fluidy material जिसके अंदर ये सारे elements immersed होते हैं. ठीक है. Plasma is the fluidy material, जो liquid material है, जिसके अंदर water content है. ठीक है. जिसकी वजह से ये flow करता है. ठीक है. So that water content of the liquid material in which all these types of the cells they are immersed, that is called as the plasma. Can you tell me what is the role of RBCs? RBCs carries this. Plasma carries it. आरबीसीज क्या कैरी करती हैं? आरबीसीज क्या हैं? हाँ जी, लास्ट कर. Yes, RBCs basically they help in carrying the RBCs helps in carrying oxygen and carbon dioxide. Number 1, है ना? RBCs are also having one blood pigment, that which, yes, that is a blood protein also and a blood pigment also, which is called as hemoglobin. So this provides red coloration. आप RBC का ये भी तो function दे सकते हो. Along with carrying oxygen and carbon dioxide, it also helps in providing the red coloration to the blood. ठीक है? What is the role of the WBCs? Yes, that is fighting against the diseases as the function of the
WBCs, very nice. Fighting against diseases or the pathogens or the germs. ठीक है. Platelets क्या करती हैं? Blood clotting. Yes, clotting of blood that is made by the platelets. And plasma is a fluidy material in which all the cells are present. Done. ठीक है. Now the next component is the heart. Heart is the human heart, that is 4-chambered heart. हाँ जी बेटा, please hold on. Garima, I'll come to your question. चलो, okay, we are continuing this. So हमने अभी क्या बात करी? That is the blood components are there and what are the roles of it? Then the blood vessels of 3 types. What are the roles of it? And the heart, right? अब heart जो है हमारा, that acts as a pumping unit. Pumping unit means it has to further pump the blood. ठीक है, इसने pumping करना है blood का ताकि ये पूरी body में move कर सके. ठीक है, तो जब भी ये हार्ट पंप करेगा, ब्लड को प्रेशराइज करेगा, तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव होता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जो हार्ट है, यानी ह्यूमंस का जो हार्ट है, दैट इज 4-चैम्बर्ड. इनिशियली अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो 4-चैम्बर्ड हार्ट शुरू में छोटे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया गया था. इट वाज द 2-चैम्बर्ड हार्ट व्हिच वाज नोटिस्ड इन द फिशेस. ठीक है, सो द फिशेस दे हैव अ 2-चैम्बर्ड हार्ट. The fishes have 2-chambered heart. The fishes, they are having 2-chambered heart. The amphibians and the reptiles, they do have 3-chambered heart. Amphibians and reptiles, they have 3-chambered heart. Reptiles में एक reptile आती है crocodiles. Crocodiles जो हैं, they are something different. They are having not 3 but 4-chambered heart. ठीक है, so amphibians along with the reptiles, they are having the 3-chambered heart. Means उनके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स बने हैं? 3. ठीक है, 3 chambers. Done. Exception is crocodile. Except crocodiles, this is having the नहीं. एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं. रेप्टाइल्स होते हैं जो टेल्ड एनिमल्स होते हैं. रेप्टाइल्स जो क्रॉल करते हैं बॉडी सरफेस से, लेकिन उनके साथ टेल होता है. ठीक है, फिशेस आपको पता है. ठीक है, देन आते हैं हमारे पास हायर ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है, द बर्ड्स एंड द मैमल्स हैव द सेम टाइप ऑफ द हार्ट, दैट इज 4-chambered heart. And I was telling you, the birds and the mammals, they have the 4-chambered heart, and because of the 4-chambered heart, they have a special type of a circulation called as double circulation. Now, what is this double circulation? These members, they show the single circulation. अब इसका मतलब क्या है? सिंगल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? As the name is saying, single circulation means what? नहीं, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? अगर हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है जो भी 2-chambered 3-chambered, लेकिन हार्ट के स्ट्रक्चर में से एक ही बारी में ब्लड जो है वो पूरा पास कर जाता है और फिर अगली सर्कुलेशन लेके जाता है. मींस हमारी बॉडी का 1 सर्कुलेशन 1 टाइम में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब हमारे हार्ट में क्या है? हमारा हार्ट 4-chambered है. इसके अंदर भी पार्टीशन लगा दो, ऐसे 4-chambered है. ठीक है, being 4-chambered, first the blood enters into the left side and it goes out from the left. ठीक है, फिर घूम के आएगा, then it enters into the right side and goes out from the right. फिर हार्ट में से पूरा कवर हुआ ना. दोबारा फिर से सुनो, हमारे हार्ट के अंदर ऐसे पूरा पार्टीशन है, जस्ट इमेजिन. ठीक है, वन टाइम इट इज एंटरिंग इन एंड लिविंग फ्रॉम दैट साइड ओनली. उसने हाफ तो कवर किया ही नहीं किया ना, राइट साइड पे तो गया ही नहीं. वो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया? अंदर आया, वहीं से बाहर चला गया,
सेकेंड टाइम पूरी बॉडी में से घूम के आएगा, फिर से अंदर आया और फिर बाहर गया, ठीक है। सो पूरा हार्ट में से निकलने के लिए दिस इज गोइंग टू come twice, the blood is going to come twice and pass on twice from the heart. That is what we call it as double circulation. What is double circulation? When the blood passes out twice from the heart to complete one circulation, right? When the blood comes out twice from the heart to complete one circulation, we call it as double circulation. Now to explain it, दोबारा क्या बोलूं? Twice, when the blood passes twice from the heart to complete one circulation. Twice from the heart, दो बार ये मूव करेगा हार्ट के अंदर से और एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। दो बारी घूमने पे एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डन। सो दिस इज फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेशन कैसे समझना है हमने? एक हाइपोथेटिकल सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाना है। डू यू नो व्हाट इज हाइपोथेटिकल? हाँ, दैट इज ओनली अ लेआउट टाइप्स, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक द कंप्लीट हार्ट स्ट्रक्चर। लास्ट बेंचर्स, हाँ जी। सो वी आर जस्ट मेकिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हार्ट। Our heart is 4 chamber. Let's say this box represents the heart. मैं थोड़ा ऊपर बनाऊं, आपको नजर नहीं आएगा, है ना? Okay. हाँ जी, for double circulation, let's say this is the box that represents the heart. We are only going to make the hypothetical heart. This is not the original heart. Structure of heart आएगा तो ये मत बना देना, ठीक है? This is only a layout. Box की तरह नहीं होता हमारा heart, ठीक है? This is completely divided into 2 chambers, left and right, and because we are having 4 chambers, so ये बीच में इसके partitions हैं जो कि इसको continue करती हैं आगे की तरफ। Getting? कितने chamber बन गए? 2, 2, 4, 4 chambers. Done? Clear? This is the left side. If a person is standing like this, the left side of the person, the left side of the heart, so is the left side. Okay, this is the left side of the heart, this is the right side of the heart. Done? Okay, हाँ, ठीक है। ये हम सिर्फ लेआउट बना रहे हैं बेटा। असली वाला हार्ट इज अ बिग मतलब डायग्राम, एंड दैट मैम विल टीच यू। ओके, राइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हार्ट। लेट्स से दिस इज अ 4 chamber heart. This is the right side and this is the left side of the heart. Okay, you start making it alongside. Nearly keep a half a page for this diagram. You require half a page for the diagram. थोड़े पेज में कवर नहीं होगा. Keep on drawing it. हाँ. This is for double circulation. फोर to 5 लाइन्स ऊपर छोड़ के फिर अपने ये बॉक्स बना देना। 4 to 5 लाइन्स नीचे भी छोड़नी है, ठीक है। हेडिंग के बाद 4 to 5 लाइन्स लीव करो, यहाँ पे भी लीव करो, बीच में हार्ट बना दो। डन। दिस इज द डायग्राम फॉर डबल सर्कुलेशन एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट ऑल्सो। बी क्विक। द ब्लड वेसल्स, दैट इज द आर्टरी एंड द वेन्स, है ना, दे आर कनेक्टेड विद द फाइन ब्रांचेस दैट ऑफ द कैपिलरीज। अभी पढ़ा ना हमने, ठीक है। सो कैपिलरीज इसको ज्वाइन करती हैं। सो दीज आर द कैपिलरीज। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन फॉर कैपिलरी। कैपिलरीज की ब्रांचेस शो करने के लिए हम इसके अंदर इस तरह से बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक द बॉक्सेस लाइक दिस जस्ट टू शो दैट दीज आर द ब्रांचेस, जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। Done. To show the branches of the capillaries. So these are the capillaries which are next to the lungs. ये lungs के पास की capillaries हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने बनानी है capillaries which are next to the other body organs. Other organs like stomach, pancreas, kidneys, है ना, बहुत सारे हाँ, gall bladder, सारे ऑर्गन्स, ठीक है। तो उनके अराउंड भी ऐसे ही कैपिलरीज एक मैश बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं।
So this is the same way you will be making it for here also. And done. Silence. Be quiet. Anji, have you drawn this? Bus, Kanav. Okay. Done. Anji, so this is next to the body organs. This is next to the body organs, the capillaries network, which is next to the body organs. Anji, next is the heart, lungs, and the body organs. These all are connected with one another, and that is with the help of the blood vessels. Okay? The blood vessels, initially they bring the blood towards the left side of the heart. ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये blood vessels जो हैं, ये blood vessels हार्ट की तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट अपर चैम्बर की तरफ. पहला ब्लड जो है फ्लो होता है फ्रॉम द लंग्स, विच इज ऑक्सीजन रिच ब्लड. यू नो व्हाट इज दिस O2? Oxygen rich blood, or we say oxygenated blood, that passes out from the lungs, and in the blood vessel it reaches to the left upper chamber of the heart. Okay, after this the blood is received by the upper chamber. The upper chamber then goes, the blood goes into the lower left chamber. अपर चैम्बर में जब ब्लड आता है फिर वो कंट्रैक्शन देगा. आपको पता ना, अपना हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना. तो अपर चैम्बर ने कंट्रैक्शन दिया, उसकी मसल्स ने जब ऐसे कंट्रैक्ट किया तो ब्लड इसके बीच में से सारा पोर डाउन होके नीचे चला गया इनटू द लोअर लेफ्ट चैम्बर. ओके, हाँ, अभी पहले ऑक्सीजनेटेड वाला देखो कहाँ गया. ठीक है, पहले अपर चैम्बर में रिसीव हुआ, फिर वो लोअर लेफ्ट चैम्बर में चला गया. डन, गेटिंग. आफ्टर दिस देयर इज अगेन अ ब्लड वेसल जो यहाँ बीच में लगा होता है. ठीक है, इट्स इन क्रॉसवर्ड, ऐसा क्रॉस में बना होता है. जब आप पूरा फुल फ्लैश डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा वो. इसमें से ब्लड वापस फिर से बाहर चला जाएगा. लोअर लेफ्ट चैम्बर भी ऐसे ही कंट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मसल तो पूरा कंट्रैक्शन देता है ना. पहले इसने कंट्रैक्शन दिया, ब्लड नीचे आ गया, ये खुला था. अब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप आउट होके बाहर जाएगा. ठीक है, जहां से ये बाहर निकला वहां पे फिर से एक ब्लड वेसल है जो कि इसको ट्रैवल करवाएगा, इसको लेके जाएगा, कंडक्ट करवाएगा इनटू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. ये सारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेके जाएगा. डन, इनटू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. समझ आया? बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कहां से मिला? लोअर लेफ्ट चैम्बर से, है ना, लोअर लेफ्ट चैम्बर. डन, समझ आ रहा है बेटा? राइट. सो द ब्लड मूवमेंट इज आउट फ्रॉम हेयर, डाउन देयर एंड इनटू द बॉडी ऑर्गन्स. इन द बॉडी ऑर्गन्स, जो अभी मैंने हैंड्स के साथ बनाया था, तो मैंने क्या बोला था, कैपिलरीज में से ऑक्सीजन ऑर्गन में जाएगी और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बैक इनटू द ब्लड जाएगी. ठीक है, हाँ जी, क्लियर? डन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ब्लड की, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है ना इधर. ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ये हमारे ऑर्गन्स के अंदर चला जाएगा. नीचे इसके ऑर्गन पड़े हैं ना, तो ऑर्गन्स के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन, और वापस क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. सो दिस इज CO2 which comes out. What is coming out is कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चली गई, ये ऑक्सीजन यहाँ अंदर चली गई. डन. ठीक है, अब यहां से भी जब भी हमारा हार्ट रिसीव करेगा, सो इट इज द फर्स्ट इज द अपर चैम्बर ऑलवेज. ठीक है, फर्स्ट विल ऑलवेज बी द अपर चैम्बर, जो पहले कंडक्ट करेगा ब्लड को, जो पहले लेगा ब्लड को. सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विच इज गोइंग आउट. अभी तक अगर आप देखो, हमारी जो लाइंस हैं ब्लड की पासेज की,
वो कहाँ से हो रही है? सिर्फ लेफ्ट साइड, राइट तो नहीं ना निकला अभी, इसका मतलब वन सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। एक बार आया ब्लड, निकल गया, बाहर चला गया, अब फिर से घूम के वापस आ रहा। अब यहां से जब निकलेगा तो वन सर्कुलेशन कंप्लीट होगा, पर एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए इट हैज मेड द ब्लड टू एंटर ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन। समझ आया व्हाट इज डबल सर्कुलेशन गर्ल्स? ओके हाँ जी। सो यहाँ पे फिर से ये ब्लड अंदर गया, ब्लड नीचे जाएगा लेफ्ट चैम्बर से नीचे, फिर सॉरी राइट अपर चैम्बर से नीचे, फिर उसके बाद वापस बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही जैसे उधर मूवमेंट हुआ था, सेम बेस है ना। अब यहां से जब बाहर निकला ब्लड तो किधर जाएगा? बैक इनटू द लंग्स। आपने रेस्पिरेशन पढ़ लिया हुआ ना, रेस्पिरेशन पढ़ा है ना आपने टर्म 1 में। हाँ, तो रेस्पिरेशन में आपने किया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल आउट होएगी फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। सो नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड passes back into the lungs for exhalation. डन, समझ आया? अब पूरा लेफ्ट साइड देखो, हमारा ये पूरा लेफ्ट साइड कौन सा टाइप ऑफ ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजन रिच। और हमारा पूरा राइट साइड कौन सा कवर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। वेरी नाइस। सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड and that is oxygen rich blood, or we call them as deoxygenated blood and oxygenated blood. Done? हाँ जी, क्लियर? हाँ जी बेटा, प्लीज बी साइलेंट, काइंडली बी क्वाइट एंड नोटिस दिस डाउन ऑल दिस। हाँ जी, सो ये क्लियर हो गया। So this is why we call it as a double circulation. Okay, these 4 blood vessels are the special blood vessels which are carrying the materials. ठीक है, ये स्पेशल ब्लड वेसल्स हैं जो लंग्स से हार्ट में लेके आती हैं और हार्ट से बॉडी टिश्यूज में लेके जा रही हैं, बैक फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द हार्ट एंड हार्ट से वापस लंग्स की तरफ। ठीक है, नाउ अगेन व्हेन यू विल बी ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, you will be labeling these blood vessels as well. Okay, so any doubt up till this? Anybody having any doubt? हाँ जी बेटा, any doubt to anyone? Just hold on.